तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 को, और इस ऑडियो बुक को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। इस ऑडियो बुक में आपको कम समय में पूरी स्टोरी बताई गई है, साथ में आपको हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, और इस चैप्टर के ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, method, and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth, and in its practice, an art. Others, usually celebrities, who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives, or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. अब हम इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। 130 वर्ष से थोड़ा ज्यादा समय से जब से साक्षात्कार का आविष्कार हुआ था, साक्षात्कार पत्रकारिता में एक आम बात हो गई है। आजकल लगभग हर साक्षर आदमी ने जीवन में कभी न कभी साक्षात्कार पढ़ा होगा, जबकि दूसरे दृष्टिकोणों से पिछले वर्षों में कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जा चुका है। उनमें से कुछ का साक्षात्कार बार बार लिया गया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साक्षात्कार के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, तरीकों और गुणों के बारे में विचार काफी अलग अलग हैं। वह बहुत ही प्रतियोगितापूर्ण दावा कर सकते हैं कि अपने उच्चतम रूप में साक्षात्कार सत्य का स्रोत है और व्यवहार में एक कला, अर्थात साक्षात्कार लेना और देना एक कला है जो उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर सत्य का पता लगा लेता है। अन्य आमतौर पर प्रसिद्ध लोग जो अपने आप को इसका शिकार समझते हैं, इसे अपने जीवन में अनावश्यक दखलंदाजी समझकर घृणा कर सकते हैं, अथवा ऐसा महसूस कर सकते हैं कि किसी न किसी तरह साक्षात्कार उन्हें छोटा करता है। ठीक वैसे जैसे कि पुरानी संस्कृतियों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटो खींच लेता है तो वह उस आदमी की आत्मा को निकाल लेता है। V.S. नायपाल, वैश्विक लेखक के रूप में प्रसिद्ध, ने अपनी यात्रा संबंधी पुस्तकों तथा अपने वृत्तचित्र की रचनाओं में अपने पूर्वजों के देश के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो कि भारत में उन्हें 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। महसूस करते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कारों से घायल होते हैं और अपना कुछ अंश खो देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लुइस कैरोल के बारे में कहा जाता है, उसे साक्षात्कारकर्ता से एक उसी समय का भय था और उसने साक्षात्कार देने को कभी हाँ नहीं की। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it." Yet Kipling had himself perpetrated such as assault on Mark Twain only a few years before. इसका यह भय उसे बहुत महत्व दिए जाने का था, जो उसे परिचितों, साक्षात्कारकर्ताओं और ऑटोग्राफ की मांग करने वाले अड़ियल लोगों से दूर रखता था, तथा बाद में वह बड़े संतोष और विनोद के साथ ऐसे लोगों को चुप रखने की अपनी सफल कहानी सुनाया करता था।
रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ता के प्रति कहीं अधिक घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया। 14 अक्टूबर 1892 को उनकी पत्नी कैरोलीन अपनी डायरी में लिखती हैं कि बोस्टन से आए 2 संवाददाताओं ने उनका दिन खराब कर दिया। वे लिखती हैं कि उनके पति ने संवाददाताओं से कहा, मैं साक्षात्कार देने से मना क्यों करता हूँ, क्योंकि यह अनैतिक है, यह एक अपराध है, उतना ही अपराध जितना मेरे ऊपर किया गया आक्रमण और उतना ही दंडनीय है। यह कायरतापूर्ण व अप्रिय है। कोई सम्मानीय व्यक्ति साक्षात्कार लेना नहीं चाहेगा और देना तो और भी बहुत कम चाहेगा। तथापि कुछ वर्ष पहले किपलिंग ने ऐसा ही आक्रमण मार्क ट्वेन पर किया था। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Saul Bellow, who was consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most of vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interview holds a position of unprecedented power and influence. सन 1894 में H.G. वेल्स ने एक साक्षात्कार में साक्षात्कार की कठिन परीक्षा की ओर संकेत किया है, परंतु वे अक्सर बार बार साक्षात्कार देते रहते हैं और 40 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। साउल बेलो, जिन्होंने अनेक अवसरों पर साक्षात्कार देना स्वीकार करने के बावजूद भी साक्षात्कार को अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा अर्थात किसी के द्वारा गला दबाए जाने जैसा बताया, फिर भी साक्षात्कार के दोषों के बावजूद यह संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है। अन्य किसी समय से ज्यादा इन दिनों हमारी समकालीन लोगों के बारे में हमारे स्पष्ट विचार साक्षात्कार से ही बनते हैं। डेनिस ब्रायन ने लिखा है, लगभग हर अत्यंत महत्वपूर्ण बात हम तक एक आदमी के दूसरे आदमी से प्रश्न पूछने के माध्यम से पहुंचती हैं। इसी वजह से साक्षात्कारकर्ता अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है, अर्थात साक्षात्कार की भूमिका बहुत ही अहम होती है। I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction, literary fiction, academic texts, essays, children books, newspapers articles. His written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. मैं एक प्रोफेसर हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। अम्बर्टो इको। निम्न अवतरण अम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार का अंश है। द हिंदू के संपादक मुकुंद पद्मनाभन साक्षात्कारता हैं। इटली में बोलोनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो इको उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले लक्षण शास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक लेखन, निबंध, बच्चों की पुस्तकें, समाचार पत्र के लिए लेख, उनके द्वारा लिखित साहित्य अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से विशाल और व्यापक है। सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ जिनकी 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिकी, उन्हें बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया। मुकुंद। द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. Umberto Eco. Maybe I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced I am always doing the same thing. Mukund. Which is? Umberto Eco. Now that is more difficult to explain. I have some philosophical interests,
and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical, philosophical interests. And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. मुकुंद। अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मैं नहीं समझ सकता किस तरह एक ही आदमी इतने काम करता है जितने वह यानी इको करता है। अम्बर्टो इको। हो सकता है कि मैं बहुत सी चीजें कर लेने का एहसास करता हूँ, पर अपने में मैं संतुष्ट हूँ कि मैं हमेशा वही एक चीज करता रहता हूँ। मुकुंद। वह कौन सी चीज है? अम्बर्टो इको। अब यह समझना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और उन्हें अपनी शैक्षणिक कार्यों और उपन्यासों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे, यहाँ तक कि मेरी बच्चों की पुस्तकें अहिंसा और शांति के बारे में हैं। वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह है। और फिर मेरा एक रहस्य है। क्या आपको पता है कि यदि ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दिया जाए, सारे परमाणुओं के स्थान को समाप्त कर दें, तो क्या होगा? ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा। Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my place. You are in an elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. Mukund. Not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं और मैं उन्हें खाली जगह कहता हूँ। मान लो आप मेरे घर आ रहे हो, आप लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह एक खाली जगह, रिक्त स्थान है। मैं खाली जगह में काम करता हूँ। आपकी लिफ्ट के प्रथम तल से तृतीय तल तक पहुँचने की प्रतीक्षा करते समय मैं एक लेख पहले ही लिख चुका हूँ। मुकुंद। निसंदेह हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। आपके अकाल्पनिक लेखन और विद्वत्तापूर्ण लेखन में एक खास विनोदपूर्ण तथा व्यक्तिगत गुण है। यह नियमित शैक्षणिक शैली से स्पष्टता हटकर है, जो निश्चय ही निरपवाद रूप से अव्यक्तिगत तथा प्रायः शुष्क और उबाऊ है। क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना है, या यह ऐसी चीज है जो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त हो गई है? अम्बर्टो इको। When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, "Scholars learn a lot of a certain subject. Then they make a lot of false hypotheses. Then they correct them, and at the end, they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors." At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect. And this is why probably I started writing narrative novels so late, at the age of 50, more or less. अम्बर्टो इको। जब मैंने इटली में अपना पहला डॉक्टरेट संबंधी शोध निबंध प्रस्तुत किया, तब एक प्रोफेसर ने कहा, विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वह बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, फिर वे उन्हें ठीक करते हैं और अंत में वे निष्कर्ष रखते हैं। इसके विपरीत आपने अपनी शोध की कहानी सुनाई है, यहाँ तक कि अपने प्रयासों और असफलताओं को भी शामिल किया है। उसी समय उसने जाना कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध की पुस्तक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, जिसका मतलब था उसने मेरे लेखन को स्वीकार किया। उस समय 22 वर्ष की उम्र में मैं समझ गया कि विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें उसी तरह लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थीं, शोध की कहानी कहकर। यही कारण है मेरे निबंधों में कथात्मक पहलू होता है
और शायद यही कारण है मैंने इतनी देर से उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, 50 वर्ष की उम्र के आसपास। I remember that my dear friend Ronald Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative things one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfied my taste for narration. Mukund, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction. At least more than 20 of them. Umberto Eco, over 40. मुझे याद है मेरा प्रिय मित्र रोनाल्ड बार्ट्स हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह एक निबंधकार है, एक उपन्यासकार नहीं। वह किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इस तरह की कुंठा कभी महसूस नहीं की। मैंने संयोगवश उपन्यास लिखना शुरू किया। एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। उपन्यासों ने संभवतः कथा कहने की मेरी रुचि को संतुष्ट किया। मुकुंद, उपन्यासों की बात करते हुए एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने से लेकर गुलाब का नाम के प्रकाशन के बाद शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए। आपने कम से कम 20 विद्वत्तापूर्ण उपन्यासेतर लेखन के साथ साथ आपने 5 उपन्यास लिखे हैं। अम्बर्टो इको, 40 से ज्यादा। मुकुंद, over 40, among them a seminal piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? Umberto Eco, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with the academic community. But okay, if they have read only the novels. I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with this stuff on semiotics. Mukund, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? Mukund, 40 से ज्यादा। उसमें एक लक्षण शास्त्र पर लिखा गया प्रभावशाली लेखन कार्य है, किंतु ज्यादातर लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछिए और वह कहेंगे, अरे वो उपन्यासकार हैं। क्या इससे आप परेशान होते हैं? अम्बर्टो इको, हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। यह कोई मजाक नहीं है। मैं अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ, पेन क्लब्स या लेखकों की सभाओं में नहीं। मेरी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान लोगों से है, अर्थात मैं स्वयं को अकादमिक व्यक्ति शिक्षा से संबंधित समझता हूँ। किंतु ठीक है, अगर उन लोगों ने सिर्फ उपन्यास पढ़े हैं। मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर मैं ज्यादा पाठकों तक पहुँचता हूँ। मैं आशा नहीं कर सकता कि लक्षण शास्त्र के लेखन के मेरे 10 लाख पाठक होंगे। मुकुंद, यह बात मुझे अपने अगले प्रश्न तक ले जाती है। गुलाब का नाम एक अत्यंत गंभीर उपन्यास है। एक स्तर पर एक लंबी जासूसी कहानी है, किंतु यह तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में भी ले जाती है। तथापि उसे विशाल पाठक समूह मिला। क्या आप उनसे पूरी तरह उलझ गए? अम्बर्टो इको, नो, journalists are puzzled, and sometimes publishers. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way, I reached only a small percentage of readers. But it is exactly these kind of readers who don't want easy experiences, or at least don't always want this. I myself, at 9 p.m. after dinner, watch television and want to see either Miami Vice on Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. Mukund, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that...
अंबर्टो एको नहीं, पत्रकार चकित हैं और कभी कभी प्रकाशक। यह इसलिए होता है कि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोगों को निम्न स्तर का साहित्य पसंद होता है और वे कठिनाई से पढ़कर प्राप्त अनुभवों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सोचो, इस धरती पर 6 अरब लोग हैं। गुलाब का नाम की 1 से 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी। अतः इस तरह मैं पाठ के छोटे से छोटे प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। परंतु ये वे ही पाठक हैं जो सरल अनुभव नहीं चाहते हैं, या कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते। मैं स्वयं डिनर के बाद 9 बजे टेलीविजन देखता हूँ और या तो मियामी वॉइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। मैं इसका आनंद ले सकता हूँ और मुझे इसकी जरूरत है, परंतु दिन भर नहीं। मुकुंद, क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता का इस तथ्य से कुछ संबंध है कि इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा है, जो कि अंबर्टो एको? That's possible. But let me tell you another story. Because I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher said, while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies. But in the end, it sold 2 or 3 million in the US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. अंबर्टो एको। यह संभव है, परंतु मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं प्रायः चीनी बुद्धिमान आदमी की तरह कहानी सुनाता हूँ। मेरी अमेरिकन प्रकाशक ने कहा, जबकि उसे मेरी पुस्तक पसंद थी। उसने 3,000 प्रतियों से ज्यादा बिकने की ऐसे देश में उम्मीद नहीं की थी जहां किसी ने चर्च नहीं देखी है या कोई लैटिन नहीं पढ़ता है। अतः मुझे 3,000 प्रतियों की पेशगी दी गई, परंतु अंत में अमेरिका में 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। मेरी पुस्तक से पहले मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ पुस्तक की सफलता एक रहस्य है, कोई उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मैं समझता हूँ कि मैंने गुलाब का नाम 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद लिखी होती तो परिणाम वैसा ना होता। उस समय यह इतनी सफल कैसे हो गई, यह एक रहस्य है। तो यहाँ पे ये चैप्टर द इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू।